Hi guys, I am Anu Pratap Singh. Today I solve pharmacology and questions. Question number 1. The science deals with the interaction of exogenously administered chemically molecules with living system. That is pharmacology. Who discovered penicillin vaccine? Right answer is Alexander Fleming. Source of aspirin. Right answer is synthetic. The drug obtained from animal source. Right answer is heparin. Drugs used for rare disease are known as. Right answer is orphan drugs. An orphan drug is one of that has low therapeutic index, drug with high toxicity, special manufacture economic, imported drug from foreign. Right answer is answer option B, special manufacturer economic. Which of the following treatment based describe an orphan drug? Right answer is D. It is a drug required for treatment of prevention of rare disease. जहाँ पे रेयर डिजीज है वहाँ पे ऑर्फन ड्रग आएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द ऑर्फन ड्रग? सोडियम थायोसल्फेट, फॉमिपिजोल, लिपोसोमल, एम्फोटेरेसिन बी, कीटोकोनाजोल. नॉट अमॉन्ग द ऑर्फन ड्रग. तो सोडियम थायोसल्फेट, लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी and fomipizole is a orphan drug. Ketoconazole is a not ketoconazole is not a orphan drug. Drug that are obtained if prescribed are known as. Right answer is option D, prescription drug. Hypodermic injections are administered into. Right answer is into the loose connective and adipose tissue immediately beneath the dermal skin layer. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंटल रूट? द राइट आंसर इज इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल. ये पेनफुल होगा, इनकन्वीनियंट होगा. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपेरिन एंड वारफेरिन. हेपेरिन एंड वारफेरिन के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हेपेरिन इज एडमिनिस्ट्रेड IV एंड वारफेरिन orally. Hyperpyrexia is state of. Hyperpyrexia means high body temperature. Option C is right answer. Which route of drug administration is most likely to undergo first pass effect? मतलब वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है जिससे कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है? डेट इज ऑप्शन सी, ओरल रूट. द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सबक्यूटेनियस. Insert substance given to the grab of medicine is called. Inert substance given in grab of medicine is called. एक इनर्ट सब्सटेंस है जिसकी कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है. डेट इज कॉल्ड प्लेसिबो. विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट? राइट आंसर ए, ओरल रूट. द मेजर injections is inserted in the midline between the first and second cervical vertebra is known as. Right answer is epidural injection. Route of administration of ceftriaxone is. Right answer is parenteral route. Enema is administered through. Right answer is rectal route. Which of the following drug cannot be given as intravenous bolus shot?
इंट्रावेनस बोलस के रूप में किसको नहीं दे सकते हैं, तो डेक्स्ट्रोस। डेक्स्ट्रोस जो है हमें ये जो है बोलस नहीं होता है, ये इन्फ्यूजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज सबलिंगुअली, आइसो सॉर्बाइड नाइट्रेट, निफेडिपिन नाइट्रोग्लिसरीन, that are given by sublingually route, but nitrofurantoin not given by sublingually. Which of the following can marketed under generic name? The right answer is anazine. Through which route of ipratropium bromide is administered? That is inhalational route of administration. All of the following is an example of irrational drug except. Right answer is using drugs in a cost effective way. To, to maximize the first pass effect, which of the following route should be given? जो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कौन से रूट से ड्रग देते हैं, तो डैट इज ओरल रूट। इरिटेंट ड्रग्स आर नॉट गिवन बाई, डैट इज टॉपिकली। टॉपिकली रूट से इरिटेंट ड्रग्स को नहीं देंगे। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, डैट इज रेसरपीन। द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउ टू डिजॉल्व, मतलब टंग के नीचे प्लेस करते हैं, डिजॉल्व हो जाती है, उसको हम सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो ये जो फोर्स है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में यूज होता है। कोवैलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेजल रूट? इंसुलिन, एड्रेनालिन, डेस्मोप्रेसिन, गैरनी रिलैक्स, डेट इज डेस्मोप्रेसिन। मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एसोसिएटेड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाई। जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैं जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन द्वारा जो अक्रॉस हो जाती हैं, तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस साइट्स एक्सेप्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस साइट एक्सेप्ट स्केलेटल मसल, इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रीनल ट्यूब्यूल्स। ऑप्शन 33 डी, 33 डी, रीनल ट्यूब्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ग्लूकोज टेक प्लेस साइट एक्सेप्ट, मतलब यहाँ रीनल ट्यूब्यूल्स में नहीं होगा इसका। मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इज सीन विद विच रूट, मतलब सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होगा कौन से रूट से होगा? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, रेक्टल। 34 का ए। राइट आंसर इज ए। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राटर्मल। BCG वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल। डिपॉट थेरेपी इज पॉसिबल विद विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? डिपॉट थेरेपी इज पॉसिबल विच विद विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? डिपॉट थेरेपी कहाँ से पॉसिबल है? ओरल, टॉपिकल, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर? टी, इंट्रामस्कुलर से डिपॉट थेरेपी पॉसिबल है। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय 37 ए। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय IM route
इन न्यूबोर्न में IM रूट से दी जाएगी। इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग हाइपोटोनिक सैलाइन इंट्रावेनसली। इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग हाइपोटोनिक सैलाइन इंट्रावेनसली। डैमेज टू वेनस वाल्व, हीमोलाइसिस करा देगा, रेज इन ब्लड प्रेशर या डायूरेसिस कराएगा। हाइपोटोनिक है मतलब उसका जो भी है 0.9 ग्राम से वेट बाय वॉल्यूम से कम है तो मेरे हिसाब से हीमोलाइसिस कराएगा। 38 का बी। हाइपोटोनिक अगर हम देंगे तो क्या होगा? 38 का बी। रेस इन द ब्लड प्रेशर नहीं, हाइपरटोनिक सैलाइन से रेस होगा ब्लड प्रेशर, बट इससे हीमोलाइसिस हो सकता है। नहीं लगता ये आंसर गलत है। Which are chemical substance produced by microorganism? Antibiotics, local anesthetic, antihistaminic, antihypertensive. Right answer is antibiotics. Uses of isotonic saline do not include. Uses of isotonic saline do not include. आइसोटोनिक सैलान में क्या इंक्लूड नहीं होता है? IV इन्फ्यूजन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंजेक्शन इनटू वेरिकोज वेन्स। 40। बी। Uses of isotonic saline do not include intracutaneous injection. Which among the following do not have an active metabolite? मतलब इनमें से कौन सा एक एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है? मॉर्फिन, नियोस्टिगमिन, डाज़ेपाम, डिजिटॉक्सिन। नियोस्टिगमिन। Which of the following routes of drug administration is not parenteral? Intravenous, subcutaneous, intradermal, sublingual. Right answer is sublingual. All these drugs are ineffective orally due to liver metabolism. Except all these drugs are ineffective orally, ineffective हैं orally due to liver metabolism except मतलब लीवर मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है ओरली इनफेक्टिव है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, लीडोकेन, एनटीजी। एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन। Burton's line is a clinical sign found in patient with chronic poisoning of। Burton's line एक क्लिनिकल साइन है फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ। किसकी क्रोनिक पॉइजनिंग पे बर्टन लाइन होता है? मरकरी, लेड, बिस्मथ, आर्सेनिक। राइट आंसर इज लेड। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर आर कॉल्ड। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है, इन दोनों को साथ साथ क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, नो, डिपोजिशन, मेटाबॉलिज्म। इसको हम डिपोजिशन कह सकते हैं। 45 का सी। यस, राइट आंसर इज डिपोजिशन।
What does pharmacokinetic include? Pharmacological effect of drug, unwanted effect of drug, chemical structure of a agent, medicinal agent, distribution of drug in the organism. तो इसमें एडीएम में पढ़ते हैं तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या रेफर करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस. Metabolism of drug during its passage from the site of absorption into the systematic phase. Metabolism of drug during when it comes in the contact with gastric juice. Metabolism of drug in the tongue. The right answer is option 47 B. B ही रहेगा. Metabolism of a drug during its passage from the site of absorption into the systemic circulation. The pharmacokinetic parameter that describe the efficiency of elimination of drug from body. Pharmacokinetic parameter that describe करता है efficiency of elimination. जो elimination है उसका efficiency of drug from the body. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं. 48 क्या बोलते हैं? 48 का बी क्लियरेंस. द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीच टू सिस्टम सर्कुलेशन इन अनचेंज फ्रॉम गिवन डोजेज फॉर्म. इसको क्या बोलेंगे? 49 का ए बायोअवेलेबिलिटी. Fraction of an administered drug that reach the systematic circulation in unchanged from as given dose. इसको viability हम बोलेंगे. Viability and pharmacokinetic data either is or may be required when pharmaceutical companies submit. Viability and pharmacokinetic data either is or may be required when pharmaceutical companies submit new drug application, abbreviated new drug application, supplemental application. तो इसमें कौन सा सही है? ए बी सी डी. तो डी सही है. ऑप्शन एक सही है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन टाइप. थैंक यू सो मच गाइस.